السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے، اس سیشن میں ہم آبجیکٹیو ریزولوشن 1949 جو ہے یا قرارداد مقاصد 1949 میں کی جو ہے اس کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ تو یہ قرارداد بڑی اہمیت کی حامل ہے، خصوصاً پاکستان میں جو قانون سازی کا عمل جو شروع ہوا تو اس میں اس نے ایک سیڑھی کا رول پلے کیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سیشن، اور ہم اس میں تفصیل سے جان لیتے ہیں کہ آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے وہ کیا تھا۔ تو آبجیکٹو ریزولوشن 1949 میں جو 12 مارچ 1949 کو پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی نے پاس کیا، تو یہ جو قرارداد مقاصد تھی اسے لیاقت علی خان جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے پاکستان کے، انہوں نے اسے 7 مارچ 1949 کو پیش کیا، اور یہ 12 مارچ 1949 کو جو ہے اس اسمبلی سے یہ پاس ہوا۔ تو جو پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی تھی اس میں اس وقت کل 75 ممبران تھے، اور ان 75 ممبران میں سے 21 ممبران نے اس کے حق میں جو ہے وہ ووٹ دیا۔ تو جو مائنارٹیز کے یا جو نان مسلم ممبران تھے انہوں نے کچھ تجاویز دیں کہ یہ جو ڈرافٹ ہے قرارداد مقاصد اس میں کچھ ترامیم کی جائیں، لیکن ان سب تجاویز کو ریجیکٹ کر لیا گیا، اور اسی طرح سے جو مائنارٹی کے لوگ تھے انہوں نے پھر اس کے اگینسٹ میں یا اس کے مخالفت میں جو ووٹ دیا۔ تو یہ جو ریزولوشن ہے پاکستان کا جو یعنی قرارداد مقاصد تھی جو 1949 میں پاس ہوا، تو انہوں نے پاکستان کے جو مستقبل کا جو یعنی قانون سازی کا عمل تھا اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کیونکہ 1947 میں آزاد ہوا، تو آزادی کے وقت پاکستان میں جو انگریز کا بنایا ہوا قانون تھا بر صغیر میں 1935 والا، اس قانون میں کچھ ترامیم کر کے تو پاکستان کے یعنی بحیثیت ریاست کو چلایا جا رہا تھا، لیکن یہ وقت کی ضرورت تھی کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے نئے سرے سے قانون سازی کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جائے، اور اس میں جو یورپین ماڈل تھا ظاہر سی بات ہے اس کو کیونکہ آگے فردر وہ کیری نہیں کر سکتے تھے، یہ ایک اسلامی ریاست تھی، تو اسلامی ریاست میں جو یعنی اسلام کی آئیڈیالوجی ہے یا جو اسلام میں جو جمہوریت کا ایک طریقہ ہے اس کے عین مقاصد یا پاکستان کا قانون اور پاکستان کا آئین جو ہے وہ عین اسلامی تعلیمات کے مطابق یعنی قرآن اور سنہ کے مطابق جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جو ریزولوشن ہے انہوں نے ایک قسم کی جو ہے وہ یعنی بنیاد ڈالی پاکستان میں قانون سازی کے عمل کی۔ تو یہ جو ریزولوشن ہے یہ پاکستان کا جو کیونکہ اس وقت پاکستان میں 1973 کا قانون جو ہے وہ لاگو ہے، تو وہ جو پاکستان کا جو قانون ہے یعنی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کا یہ حصہ ہے، اور 1973 کے قانون کی جو شکل 2A ہے اس کا یہ حصہ ہے۔ تو یعنی پورا جو قرارداد مقاصد ہے وہ اڈاپٹ کر لیا گیا ان دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان انڈر آرٹیکل 2A۔ تو جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے اس میں یہ نکات ہیں جو نیچے ہم جانیں گے، یہ ان کی بنیاد جو ہے وہ ڈالی گئی۔ اس میں سب سے پہلے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو سوورینٹی ہے یعنی جو حاکمیت ہے یا جو بادشاہت ہے وہ پورے کائنات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ انسان کو جو ہے وہ زمین پہ اپنا فرشتہ بنا کے بھیجا ہے، تو پاکستان اسٹیٹ میں جو مسلمان ہیں جو یعنی حکمران ہوں گے ان کے پاس یہ جو حاکمیت ہے وہ ایک اللہ کی مقدس امانت ہوگی، اور وہ اس امانت کو اسلام میں جو بنیادی جو یعنی اصول وضع کیے ہوئے ہیں ان اصول کے مطابق جو ہے وہ ریاست کو چلانے کے لیے یا ملک کو چلانے کے لیے استعمال میں لائیں گے جو بھی حکمران وقت بنیں گے۔ اس کے علاوہ جو یعنی اس مقاصد میں قرارداد مقاصد میں یہ طے پایا کہ آنے والی جو یعنی قانون ساز اسمبلیاں ہوں گی ان کے لیے جو یہ قانون ساز اسمبلی اس وقت تھی وہ یعنی ایک قسم کا آئین بنائے گی جو پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کو بحیثیت آزاد ریاست یا ملک چلانے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو تیسری پوائنٹ تھی اس میں یہ تھا کہ جو ریاست ہے وہ اپنا جو یعنی
कानून जो है रियासत का, या जो रियासत के पास जो पावर है, या जो रियासत के पास जो अथॉरिटी है, तो वो इस्तेमाल करेगी रियासत अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए। यानी लोग जो है वो वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे, और फिर वो जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे वो रियासत के यानी अथॉरिटी को और पावर को इस्तेमाल करेंगे रियासत को चलाने के लिए। इसी तरह से पॉइंट नंबर 4 जो थी कि इस्लाम के मुताबिक जो बुनियादी असूल हैं जमहूरियत के, आज़ादी के, बराबरी के, बर्दाश्त के और इसी तरह से समाजी इंसाफ के, वो इस्लाम के ऐन मुताबिक जो हैं वो फॉलो किए जाएंगे। यानी जो जमहूरियत है या जो आज़ादी है, इसी तरह से जो बराबरी का दर्स जो हमें इस्लाम देता है और बर्दाश्त का, और इसी तरह से फिर समाजी इंसाफ का, ये मुल्क में लागू किया जाएगा ऐन इस्लामी तालीमात के मुताबिक। इसी तरह से मुसलमान जो हैं उन्हें बिल्कुल हर तरह की आज़ादी होगी कि वो इनफरादी और इज्तिमाई लिहाज से अपनी ज़िंदगी जो है वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक या कुरान और सुन्ना की तालीमात के मुताबिक बिल्कुल आज़ादी से गुजारेंगे, क्योंकि बरे सगीर में यानी आज़ादी से पहले मुसलमानों को इस तरह के काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे, यानी उन्हें मजहबी लिहाज से आज़ादी नहीं थी, या वो अपनी ज़िंदगी इस्लाम की तालीमात के मुताबिक गुजारने में काफ़ी दुश्वारियाँ महसूस कर रहे थे। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 जो है करारदाद मकासद की, उसमें ये मेंशन है कि पाकिस्तान में जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, यानी जो नॉन मुस्लिम्स थे, उनको उनके बराबर के हकूक़ दिए जाएंगे और उन्हें हर किस्म की आज़ादी होगी कि वो अपने मज़हब के तरीके से इबादत करें और अपने जो उनके मजहबी रवायात या जो रसूमात हैं वो उनको फॉलो करेंगे, और उनके बुनियादी हकूक़ जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं। इसी तरह से करारदाद मकासद की जो पॉइंट नंबर 7 है, उसमें ये मेंशन है कि पाकिस्तान एक वफाकी तर्ज़ हुकूमत होगी, यानी एक मरकज़ होगा और उस मरकज़ की 4 इकाइयाँ जो अभी भी हैं, तो इकाइयाँ होंगी यानी ऑटोनोमस। उस वक्त जो यानी इकाइयाँ थीं उसमें ईस्ट पाकिस्तान भी था, जिसको अब हम बांग्लादेश के तौर पे जानते हैं। तो यानी बांग्लादेश की एक इकाई थी यानी ईस्ट पाकिस्तान, और इसी तरह से पंजाब, इसी तरह से सिंध, इसी तरह से सरहद के पीके, क्योंकि तब वो NWFP कहलाता था, और इसी तरह से बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान बाकायदा से जो है वो यानी इस करारदाद मकासद के पेश होने तक वो बाकायदा एक सूबे के हैसियत से पाकिस्तान का हिस्सा तो नहीं था, वो अलग रियासत थी, लेकिन वो भी इन कवानीन को मानने के लिए राज़ी थे। इसी तरह से पॉइंट नंबर 8 जो है कि जो बुनियादी हकूक़ हैं शहरियों के, उनकी गारंटी दी जाएगी। वो हर किस्म के बुनियादी हकूक़, यानी एक किस्म की बराबरी समाजी लिहाज से, या वैसे कि सारे इंसान जो है वो बराबर हैं, कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान से बढ़ कर के नहीं है या उससे बालातर नहीं है। तो ये इक्वलिटी ऑफ स्टेटस जो है ये हिजतुल विदा का जो आखिरी खुतबा है उसके ऐन मुताबिक थी, कि जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी अरब को अजम पे, या गोरे को काले पे, या काले को गोरे पे, या अमीर को गरीब पे किसी किस्म की फौकियत नहीं होगी। तो ये उस यानी इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की बात है। इसी तरह से सबको बराबर मौके दी जाएंगे हर लिहाज से, यानी हर शहरी को बराबर के जो है वो मौके मैसर होंगे, और इसी तरह से हर शहरी जो है वो कानून के सामने बराबर होगा, और इसी तरह से हर शहरी को उसके समाजी, मुआशी, सियासी हकूक़ हासिल होंगे, और हर शहरी को जो है वो इंसाफ मुहैया किया जाएगा। हर शहरी जो है वो अपनी राय का इजहार कर सकेगा, और इसी तरह से हर शहरी जो है वो जिस भी मकसद है कि जिस भी मज़हब में वो यकीन रखता है वो उस हिसाब से अपनी इबादत जो है वो कर सकेगा, और हर शहरी को जो है वो यानी मजहबी लिहाज से भी आज़ादी होगी। इसी तरह से पॉइंट नंबर 9 जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं जितनी भी, यानी 1949 में पाकिस्तान में जितनी माइनॉरिटीज़ थी, बिलखुसूस हिंदू उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अक्सरियत में थे, और साथ में कुछ ईसाई भी थे, सिख भी थे। तो उनके जो हकूक़ हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा आईन पाकिस्तान के मुताबिक। इसी तरह से पॉइंट नंबर 10 जो है कि अदलिया की आज़ादी जो है वो उसकी यानी एक किस्म की गारंटी दी जाए कि हर लिहाज से मुमकिन बनाया जाएगा कि अदालतें जो हैं वो पाकिस्तान में बिल्कुल आज़ाद हों,
और वो आज़ादी से जो है वो इंसाफ का जो निज़ाम है उसे जारी रख सकें। इसी तरह से पॉइंट नंबर 11 जो है उसमें ये था कि जो यानी कुछ पाकिस्तान में जिस तरह फाटा है, यानी ट्राइबल एरियाज़ जो हैं या पाकिस्तान के बाकी जितने भी सरहदी इलाके थे, उनका जो है यानी ये यकीनी बनाया जाएगा कि पाकिस्तान अपने सरहदों की जो है वो हिफाजत करेगा और पाकिस्तान एक आज़ाद और खुदमुख्तार रियासत के तौर पे जो है वो आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। इसी तरह से पाकिस्तान अपने यानी ज़मीनी सरहदें और इसी तरह से फ़िज़ाई सरहदें और इसी तरह से जो समुद्री जो सरहदें हैं उनकी भी हिफाजत करेगा और उन पे पाकिस्तान जो है वो अपनी हाकमियत जो है वो बरकरार रखेगा, जिस तरह तय पाया जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है ये दो अलग अलग मुल्क के तौर पे दुनिया के नक्शे पे इमर्ज हुए 1947 में। और इसी तरह से ये था कि पॉइंट नंबर 12 जो है या जो लास्ट है कि पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो यानी उनका ये हक है कि वो इज़्ज़त व तकरीम से अपनी ज़िंदगी गुजारें और वो तरक्की के मनाज़िल तय करें। और साथ में ये भी है कि पाकिस्तान जो है बहैसियत नेशन वो पूरी दुनिया में अपना एक अहम किरदार अदा करे, दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिहाज से। और इसी तरह से दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं उनके साथ यानी पाकिस्तान बहैसियत कौम अपने अच्छे रवाबित जो है वो कायम कर सके। तो ये था करारदाद मकासद, जिसमें बेसिकली ये 12 जो हैं अहम नुकात थे। और ये अब जो इस वक्त पाकिस्तान का कानून है यानी 1973 का जो आइन है उसका ये हिस्सा है। और 1973 के आइन की शक 2A में ये जो यानी करारदाद मकासद है ये पूरी एन यानी जिस तरह है ऐसे ही उसको शामिल किया गया है। तो यहाँ पे ही हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है करारदाद मकासद का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको करारदाद मकासद के बारे में जो आपको मालूमात चाहिए थी वो आपको मिल चुकी होगी और आपको करारदाद मकासद को समझने में काफ़ी हद तक आसानी होगी। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। हमेशा की तरह जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में कमेंट भी करें, लाइक भी करें और इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले सेशंस के बारे में आपको मालूमात मिलती रहे। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। सो सी यू टिल द नेक्स्ट सेशन। इट्स गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।